It's been an endless season of monsoon misery, cloudbursts, flash floods, which have inundated many parts of our country, and especially the hilly regions. I want to show you a few visuals, whether it's Uttarakhand, Himachal Pradesh, Manipur. It's the season of misery continues, even as the monsoon recedes from the major part of this country. One by one, just take a look, because today in Uttarakhand, in Dehradun area, there has been a cloudburst which has been reported. Just take a look at these visuals one by one. This is the raging, in fact, Tamsa River, and it has inundated the very popular Tapekeshwar temple near Dehradun. Nearly 2 feet of debris has accumulated at the temple complex, and the premises has sustained significant damages. People have been cautioned from going here. Now just let me show you another picture from Dehradun. 10 mining laborers were swept away in Dehradun. Just take a look at this. I mean, this is a horrific situation to be caught in. This happened due to heavy rainfall since last night. Clouds burst in the region, especially in Dehradun, and heavy rains have caused massive damage. All of these people have been swept away. There is still, in fact, the rescue agencies trying to recover or, in fact, save them. Heavy rainfall has also impacted other parts. This is Sahastradhara in Dehradun, where markets have been completely inundated, cutting off streets, stranding people and vehicles. Hotels, shops, all have sustained massive damage in this area, in the Sahastradhara area. Concrete slabs, just let's switch to the other image. In fact, concrete slabs were seen completely, floating in the Sahastradhara IT park, which has been flooded, and roads have turned into a river. Meanwhile, several students of the Dev Bhumi Institute in Dehradun, in Vikasnagar area, were in fact evacuated to safety after they were trapped due to massive waterlogging because of the cloudburst. Now, all this, ladies and gentlemen, has been one of the biggest warning as far as the hill states are concerned, whether it is Uttarakhand or Himachal Pradesh. All these states are specifically suffering. Take a look at this report my colleague Kishore has sent from Dehradun. करलीघाट में भारी तबाही हुई है, जिसकी वजह से 3 लोग लापता हो गए हैं। एसडीआरएफ की टीम उन्हें तलाश कर रही है, लेकिन आसपास के जो गांव हैं या घर हैं, वहां पर भी भारी नुकसान हुआ है। इस वक्त मैं एक ऐसे ही घर में मौजूद हूं, जो कि पहली मंजिल पर है, और ये देख सकते हैं कि किस तरीके से पंखे मुड़े हुए हैं। पूरी तरह से घर तबाह हो चुका है, और यहाँ पर मलबा छत तक यहाँ पर पहुँच गया है। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर घर का जो एक पिलर है, वो किस तरीके से यहाँ पर लटक रहा है हवा में, और ये बेहद ही खतरनाक हो गया है। इस वक्त जो घर है वो पूरी तरह से टूट चुका है, तबाह हो चुका है, और अभी जो बचा कुछ है नज़र आ रहा है, उसमें वो तबाही का मंजर है। जिस रात को ये देर रात को जब तबाही हुई थी, मलबा आया था, भारी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ये भारी नुकसान हुआ है। पूरी तरह से इस तरह से करीबन यहाँ पर जो बताया जा रहा है, आधा दर्जन से ज़्यादा जो घर है वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये घर की छत है, और छत तक मलबा यहाँ पर आ चुका है। और अब फिलहाल लोगों को यहाँ से तो रेस्क्यू कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, क्योंकि 3 लोग मलबे में दबे हुए हैं और जिनको तलाश किया जा रहा है। दारा में भारी नुकसान हुआ है, कई होटल टूट गए हैं। ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये होटल और रेस्टोरेंट थे। करीबन यहाँ पर 2 होटल थे जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। यहाँ पर जो होटल है उसमें गनीमत रही कि लोग नहीं थे, लेकिन काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। ये सामने एक होटल है जो पूरी तरह से दरार आ चुकी है, और ये पूरी तरह से टूट चुका है। हमारे साथ इस होटल के ऑनर हैं। आपका नाम क्या है? अरविंद जी, कब आपको पता लगा ये नुकसान हुआ है? सर, मुझे रात को 11:30 बजे फ़ोन आ गया था। हमारे गांव का एक लड़का है, उसने फ़ोन किया था, तो गांव में बादल फट गया था। तब उन्होंने बोला कि यहाँ पे ऐसी ऐसी स्थिति है, पानी बहुत ज़्यादा आ गया है। फिर हमने उन्हें थोड़ी सलाह दी कि तुम गांव की तरफ चल जाओ, पीछे की तरफ, फ्रंट में हमारा ही घर है नदी के पास, तो वहाँ चले गए थे। फिर उसके बाद रात भर हम बैठे रहे। हम क्या ही कर सकते थे, रात को बारिश रुकी नहीं, और उसके पूरी तरह से सुबह ही, हाँ, अब सुबह भी पता चल रहा पीछे से भी ढांग आ गई है,
पूरी हमारे ताऊ जी का घर, हमारा घर, हमारा मंदिर सब साफ हो गया, सब बह गया। हमारा ये होटल है, होटल भी पीछे से पूरा बह गया, फ्रंट में है ये जो दिख रहा है, बस और कुछ नहीं। बाकी सब हमारा मेन रोजगार ये था, ये खत्म हो गया। बिल्कुल, इससे सीधे लोगों पे रोजगार पे असर पड़ा है। उनकी जमा पूंजी जो उन्होंने बड़ी मेहनत से यहाँ पर लगाई थी वो पूरी तरह टूट चुका है। सहस्त्रधारा पूरी देश दुनिया में मशहूर था। यहाँ पे विदेशी लोग आते थे, भारत के लोग आते थे, यहाँ पे अलग अलग राज्यों से आते थे। लेकिन अब देख सकते हैं कि पूरी तरह से भारी नुकसान हुआ है और लगातार नुकसान का आकलन किया जा रहा है। लेकिन प्रकृति का रौद्र रूप है जिसने यहाँ पर काफ़ी तबाही मचाई है। Himachal Pradesh, the other hill state in the country, has also suffered unprecedented damage this monsoon. I want to show you some visuals from Mandi and from Dehradun as well. This is in Mandi district. Because of massive rainfall in the night, it has caused a lot of damage in Mandi. And remember, Mandi has been at the epicenter of cloudbursts, flash floods throughout this season. The entire market in the Dharampur area has been almost swept away, has been finished as far as this area is concerned. Meanwhile, in capital Shimla as well, things have been quite dramatic. Huge, landslides have created a lot of damage in Shimla as well. Near the highway number 5, 12 vehicles have been buried because of the trees and the boulders which have come crumbling down the mountains here in Shimla. The national highway has been cut off, and at this moment there are a lot of people, those stuck on either side. Look at this, how the truck is dangling in a dangerous situation here in Shimla. Many commuters are stuck because of these huge landslides. VD Sharma gets us this report. हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर अभी भी जारी है। और अगर मैं आपको ताज़ा स्थिति बताऊं तो शिमला राजधानी की बात करूं तो यहां पर नेशनल हाईवे 05 पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। सुबह से जो है ट्रैफिक बंद है, आवाजाही ठप है। पिछले 2 घंटे से अगर मैं बात करूं तो शिमला के हिमलैंड में जो है भारी लैंडस्लाइड हुआ है और यहाँ पर जो है करीब 1 दर्जन के करीब गाड़ियाँ दब गई थी। कई विशालकाय पेड़ गिरे हैं। ये जो है तस्वीरें मैं आपको घटनास्थल की बता रहा हूँ। यहाँ पर कई गाड़ियाँ दब गई, कई विशालकाय पेड़ गिर गए। और इसी तरह से जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि शिमला के BCS विकास नगर और महली ISBT पांजड़ी के पास जो है दर्जन भर गाड़ियाँ दब गई। और इसी तरह से जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में कमोबेश यही स्थिति जो है अलग अलग जगहों पर है। और लगातार पिछले अगर मैं आपसे बात करूं तो 24 से 48 घंटे से जगह जगह जो है भारी बारिश हो रही है। और ये जो है मैं आपको बताऊं, जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं इस वक्त, ये हिमलैंड के पास की है। और यहाँ पर जो है इस तरह से जो है लैंडस्लाइड हुआ कि ऊपर से जो है सारा मलबा जो है, पेड़ गिर गए, मलबा गिर गया और नीचे जो है गाड़ियाँ दब गई। और मेरे पीछे अगर मैं आपको यहाँ से पैन करके दिखाने का प्रयास करूँ तो मेरे पीछे जो है यहाँ जो है मेरे पीछे जो है आपको गाड़ी जो है दबी हुई दिखाई देगी। और यहाँ पर जो है हल्का फुल्का ट्रैफिक भी जो है शुरू हो गया है। ये देखिए आप मेरे पीछे ये गाड़ियाँ जो है दबी हुई है। और इसी तरह से कमोबेश शिमला शहर में और राजधानी शिमला में जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं। All right, we are slipping into a very short break at this moment. Situation in Manipur is also very, very critical. But the mountain states, there is a very clear message for us. It's still time. If we don't heed to these warning signs, it will be too late. Coming back with much more on the other side. Stay tuned.